Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. We are starting a new chapter, Dissolution of a Partnership Firm, and presenting video 1 of this chapter. We shall be covering the following topics in this chapter. Topic 1, Basic Concepts of Dissolution of Partnership. Topic 2, Accounting Treatment on Dissolution, and in this topic we will discuss about the realization account. Topic 3, again on the accounting treatment on dissolution, but here we will discuss about partners capital account, partners loan account and cash account. Topic 4, about memorandum balance sheet. Students, we are starting with topic 1, which is basic concepts of dissolution of partnership firm. In this topic we will discuss about meaning and modes of dissolution of partnership firm and order of settlement of liabilities, partner loans and partners capital. Dissolution of partnership firm. मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के एक फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर्स हैं और दोनों ने ही आपस में फैसला कर लिया कि वो फर्म को जो है बंद कर देंगे, उसको डीकंस्ट्रक्ट कर देंगे और उसके बाद जो है जो भी फॉर्मेलिटीज है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, लाइक जैसे कि जितने भी क्लेम्स हैं क्रेडिटर्स के, बिल्स पेबल के या कोई भी और क्लेम है उनको पे कर दिया जाए और उसके लिए जो है एसेट्स को सेल करके पैसा निकाला जाता है और वो डेफिसिट है तो वो भी पार्टनर्स लेके आते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं कि मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म क्या है। According to Section 39 of the Partnership Act 1932, the dissolution of partnership between all partners of a firm is called the dissolution of the firm. So Partnership Act 1932 के Section 39 के अनुसार एक फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच के डिसोल्यूशन को ही फर्म का डिसोल्यूशन कहा जाता है। It is the breaking or discontinuance of relationship between all the partners which is termed as dissolution of partnership firm. यह सभी पार्टनर्स के बीच के रिलेशंस का टूटना या बंद होना जिसे पार्टनरशिप फर्म का ही डिसोल्यूशन कहा जाता है। This brings an end to the existence of the firm and no business is transacted after dissolution except the activities related to closing of the firm, as the affair of the firm are to be wound up by selling firm's assets and paying its liabilities and discharging the claims of the partners. So यह फर्म के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता है और फर्म में बंद होने से रिलेटेड एक्टिविटीज को छोड़कर और कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन डिसोल्यूशन के बाद नहीं किया जाता है, क्योंकि फर्म के सभी एक्टिविटीज को बंद करना है जो कि फर्म की एसेट्स को बेचकर सभी लायबिलिटीज को पे करके और पार्टनर्स के अकाउंट का सेटलमेंट करके फिनिश किया जाता है। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपस में काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का तो समझ लिया कि क्या मीनिंग है, आइए हम ये भी समझ लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है। Dissolution of partnership means termination of old partnership agreement and a reconstitution of firm due to admission, retirement and death of a partner. In dissolution of a partnership, the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement. So इसका ये मतलब है कि एक पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का मतलब है पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट की समाप्ति और एक पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के कारण फर्म का पुनर्गठन। एक पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में बचे हुए पार्टनर्स एक नए एग्रीमेंट के तहत बिजनेस करने के लिए सहमत हो सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या अंतर है। सो बेसिस डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग, अर्थ क्या है? Dissolution of partnership means change in existing relationship of the partners. The firm continues the business. Dissolution of partnership का मतलब है कि पार्टनर्स के मौजूदा संबंधों में बदलाव जबकि फर्म अपना कारोबार जारी रखे हुए है। Dissolution of a firm means the dissolution of partnership among all the partners of the firm and the firm's business is closed. एक फर्म के डिसोल्यूशन का अर्थ है कि फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना
और फर्म का बिजनेस बंद हो जाना। क्लोजर ऑफ बुक्स, इट डज नॉट रिक्वायर क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज बिजनेस इज नॉट क्लोज्ड। इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बिजनेस बंद नहीं हुआ है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एज द बिजनेस इज क्लोज्ड। बिजनेस बंद होने के कारण बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। कोर्ट्स इंटरवेंशन, अदालत के हस्तक्षेप। कोर्ट डज नॉट इंटरवीन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो अदालत है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि ये जो डिसोल्यूशन है ये आपसी सहमति के साथ ही हो जाता है। ए फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय कोर्ट्स ऑर्डर। अदालत के आदेश के अनुसार एक फर्म को भी भंग किया जा सकता है। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीएसेट्स। जब डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एसेट्स जो हैं रीवैल्यू किया जा सकता है या लायबिलिटीज को रीअसेस किया जा सकता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम देखते हैं कि ऑल द एसेट्स अदर देन कैश आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में क्या होता है कि सारी एसेट्स को हम बेच देते हैं और उससे जो पैसा आता है उससे हम अपनी लायबिलिटीज को पे कर देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपैरिजन है ऑन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर चेंजेस। जो पार्टनर्स के बीच का जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो भी आर्थिक रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, गुडविल वगैरह के ट्रीटमेंट हो जाते हैं, या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो जाती है, तो उनके आपस के रिलेशनशिप जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज हो जाते हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, क्योंकि फॉर्म ही खत्म हो गई है। सो इसके लिए सभी पार्टनर्स अपने अपने घर चले गए, कोई बिजनेस तो चलाना नहीं है। सो इसलिए इकोनॉमिक रिलेशंस जो भी पार्टनर्स के बीच में है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में समाप्ति पे आ जाते हैं, एंड पे आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, सिर्फ पार्टनर्स के आपस में कोई आ रहा है कोई जा रहा है या कुछ और रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, बिजनेस तो चलता ही रहता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस जो है बंद हो जाता है। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो जो है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं भी हो सकता। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होना। जब फर्म ही बंद हो गई है सो कोई पार्टनर तो उनका आपस में रिलेशनशिप तो बचा ही नहीं है। सभी जो है एसेट्स बेच के लायबिलिटीज को पे करके कुछ पैसा बचा है तो अपने घर ले जाके सब अपने अपने घर चले गए हैं। सो इसका ये मतलब है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ हम फर्म की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली हो जाता है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो कितने तरीके से हो सकती है। फैक्ट्री है उसको ताला लग गया, डिसॉल्व होगी फर्म। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति से। पॉइंट नंबर 1, ऑल द पार्टनर्स गिव कंसेंट। सभी पार्टनर्स ने ये सहमति दे दी कि हम फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप जो फॉर्म हुई है उसके लिए जो भी एग्रीमेंट बना था, जो पार्टनरशिप डीड दी थी, उसके टर्म्स के अनुसार, उनकी शर्तों के अनुसार भी जो है फर्म डिसॉल्व हो सकती है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, point number 1, when all the partners or all except one partner becomes insolvent or of unsound mind। जब या तो सभी पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स -1, मतलब एक पार्टनर को छोड़ के सारे के सारे या तो इंसॉल्वेंट हो गए हो, दिवाली हो गए हो, या अनसाउंड माइंड के हो गए हो, या इसका ये मतलब है कि उनका दिमाग जो है सही तरीके से काम ना कर रहा हो। पॉइंट नंबर 2, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। अगर फर्म का जो बिजनेस है वही इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया है तो भी जो है फर्म को बंद कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और कंटीजेंट डिसोल्यूशन, किसी कारणवश से जो है डिसोल्यूशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए जो है वो बनी हुई थी, अब वो जो है अवधि पूरी हो गई है, सो जो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, अब सपोज कर लीजिए कि
ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई थी। सपोज कर लीजिए एक बिल्डिंग बनानी थी, अब वो बिल्डिंग बन गई है, अब जो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, उसकी पेमेंट मिल गई है, सब कुछ हो गया है, हैंड ओवर हो गया है, तो वो वेंचर जो है कंप्लीट हो गया है, सो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर पे भी जो है फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे या दिवालिया होने पे भी जो है फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। बाय नोटिस, सूचना देने पे। इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप एट विल, द फर्म में बी डिसॉल्व्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स गिव नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप एट विल है सो उसमें भी फर्म को डिसॉल्व किया जाता है जब कोई भी एक पार्टनर जो है नोटिस दे देता है बाकी पार्टनर्स को इन राइटिंग। सो कोर्ट जो है डिसोल्यूशन के लिए एक ऑर्डर पास कर सकता है इन शर्तों पे। ए पार्टनर बिकम्स ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जब एक पार्टनर का दिमाग पूरी तरीके से काम नहीं करता। ए पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटीज एज ए पार्टनर, एक पार्टनर स्थायी रूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है, तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। A partner is guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm, जब एक पार्टनर मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाए और जिससे फर्म के बिजनेस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। ए पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब एक पार्टनर लगातार पार्टनरशिप के एग्रीमेंट का उल्लंघन करता रहे। ए पार्टनर ट्रांसफर्स हिज और हर इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी, जब एक पार्टनर फर्म में अपने हित को तीसरे पक्ष को ट्रांसफर कर दे, एक तीसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दे। पॉइंट नंबर 6, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट ए लॉस। अब फर्म का जो बिजनेस है उसमें ये दिख रहा है कि ये जो है हमेशा लॉस पे ही चलेगा, हमेशा हानि ही हानि होगी, इसमें जो है प्रॉफिट कमाने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। द कोर्ट रिगार्ड्स डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, जब अदालत जो है डिसोल्यूशन को न्याय संगत मानती है या जस्ट या इक्विटेबल मानती है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय पे अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाता है यह दिया गया है सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, द फर्म ceases टू कंडक्ट बिजनेस एंड हैज टू सेटल इट्स अकाउंट्स। For this purpose, it disposes of all its assets for satisfying all the claims against it. Dissolution of firm के होने पर फर्म जो है अपना बिजनेस जो है बंद कर देती है और इसे क्या करना होता है, अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको सेटल करना होता है, इसके जितनी भी लाइबिलिटीज हैं इसको वो सेटल करना है। इस पर्पस के लिए ये क्या करती है फर्म कि ये अपने सारे एसेट्स को बेच देती है और जितने भी उसके अगेंस्ट दावे हैं, जो भी दावे किन से होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर से हो सकते हैं, बिल्स पेबल से हो सकते हैं, कुछ लोन्स अगेंस्ट हो सकते हैं या कोई भी और लाइबिलिटी हो सकती है जो बुक्स में रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, उस सबको पे करना पड़ता है। In this context, it should be noted, subject to agreements among the partners, the following rules as provided in the section 48 of the Partnership Act 1932 shall apply. अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करने के लिए रूल्स नीचे दिए गए हैं जो कि एज पर सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट है, ये अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है वो उसको सुपरसीड करेगा। ए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करना है। लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड, जो लॉसेज हैं और साथ के साथ ही अगर कोई डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो कैसे पे करना है हमने, उसका क्या ऑर्डर रहेगा। सो सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जितने भी हमने प्रॉफिट्स कमा रखे हैं उसमें से पे करना है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, सेकंड क्या है, जो पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आए हुए हैं उस कैपिटल के पैसे को यूज करते हुए हमने इन दावों को, इन क्लेम्स को हमने पे करना है। थर्ड, लास्टली, इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो ये सारा पैसा यूज करके भी जो है हमने सारे क्लेम्स को सेटल नहीं कर पाए, तो पार्टनर्स जो हैं अपने अपने घरों से पैसा लेके आएंगे और वो कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर सेटलमेंट ऑफ दीज क्लेम्स, जो भी डेफिशिएंसी बची है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, अब एसेट्स को हमने कैसे अप्लाई करना है। The assets of the firm, including any sum contributed by the partners to make up deficiencies of capital,
shall be applied in the following manner and order। जो एसेट्स ऑफ द फर्म को बेच के जो पैसा आया है और इसके साथ ही कोई भी डेफिशिएंसी जो पार्टनर से कंट्रीब्यूट की है, इन सबको मिला के जो भी पैसा है, इसको जो है हमने कैसे अप्लाई करना है, हमने इस ऑर्डर में अप्लाई करना है जो कि हम नीचे लिख रहे हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं, जैसे हमने बात किया, जिसने फर्म से पैसा लेना है, फर्म से किसने पैसा लेना है? जिनसे हमने सामान खरीदा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर, अगर हमने कोई लोन ले रखा है बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी पार्टनर के रिलेटिव से, किसी थर्ड पार्टी से, सब किसी को भी जो हमने पैसा देना है, तो सबसे पहले जो है एसेट्स बेच के उन सभी लोगों को पैसा मिलेगा। Second, in paying each partner proportionately what is due to him or her from the firm for advances as distinguished from capital। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इस पैसे को यूज करना है आफ्टर पेइंग द डेट टू द थर्ड पार्टीज। जो भी पैसा बचा हुआ है वो हमने पार्टनर से कोई भी पैसा लिया हुआ है, जैसे लोन ले रखा है, तो उसको पे करना है। थर्ड प्रायोरिटी क्या है? इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अगर इसके बाद भी पैसा बचता है, जो पार्टनर के कैपिटल का जो भी बैलेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको जो है पे कर दिया जाता है। द रेजिड्यू इफ एनी शेल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए कि इन तीनों को पे करने के बाद भी जो है हमारे पास कुछ पैसा बच गया, तो वो पैसा जो है सभी पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाता है और वो पार्टनर्स अपने ये जो पैसा है अपने घर ले जाते हैं। फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, सेक्शन 49 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फर्म के डेट का क्या ऑर्डर है पे करने का, और प्राइवेट डेट्स का क्या ऑर्डर रहता है पे करने का, आइए अब हम ये डिस्कस करते हैं। Where both the debts of the firm and private debts of a partner coexist, the following rules as stated in section 49 of the act shall apply। ऐसी सिचुएशन में जब फर्म के भी डेट खड़े हुए हैं, डेट मतलब उधार ले रखा है, और एक पार्टनर ने भी प्राइवेटली भी कुछ उधार ले रखा है, अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट हो रही हैं, तो ये रूल्स जो है, जो कि सेक्शन 49 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे रखे हैं, ये रूल्स अप्लाई होंगे। A. The property of the firm shall be applied first in the payment of debts of the firm, and then the surplus, if any, shall be divided among the partners as per their claims, which can be utilized for payment of their private liabilities। तो स्टूडेंट्स से समझने की कोशिश करो कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है, जो फर्म के एसेट्स हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो फर्नीचर है, जो मोटर व्हीकल्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, स्टॉक है, ये सब बेच के जो भी पैसा आएगा, ये किसके लिए अप्लाई होगा? ये फर्म के डेट्स के लिए पहले अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि पार्टनर बोलेगा कि मैंने भी लोन ले रखा है कहीं से पर्सनल अपनी कार के लिए, तो मेरे को जो है पहले ये पैसा लेके, जो फर्म का पैसा यूज करके मैं अपने प्राइवेट डेट चुकाऊंगा। ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम फर्म की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो फर्म के डेट सबसे पहले पे होंगे, राइट? और वो पे करने के बाद अगर कोई सरप्लस बचता है, तो वो जो है किस में डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स में। और पार्टनर्स जो हैं उसको फिर यूज कर सकते हैं फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर प्राइवेट लाइबिलिटीज। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शेल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स, एंड द सरप्लस इफ एनी मे बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट इन केस द फर्म्स लाइबिलिटी एक्सीड द फर्म्स एसेट्स। अब सिचुएशन उल्टी है। डेट तो दोनों के हैं, फर्म के पास भी कुछ डेट्स हैं जो उसने पे करने हैं, और साथ ही साथ पार्टनर्स के भी कुछ डेट्स हैं। अब पार्टनर के जो डेट्स हैं, अब पार्टनर क्या करेगा? सबसे पहले अपनी एसेट्स बेचेगा, पर्सनल एसेट्स। मान लो उसके पास कार है, उसके पास मकान है, उसके पास शेयर्स हैं, उसके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं। सो वो पहले अपनी एसेट्स बेच के अपने प्राइवेट डेट निपटाएगा, राइट? और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है, अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के, अपनी प्राइवेट एसेट्स को बेच के अगर कुछ पैसा उसका बचता है, तो वो उस पैसे को यूटिलाइज करेगा फर्म के डेट्स को पे करने में, अगर कुछ डेफिशिएंसी बच जाती है। देखिए इसके में बहुत सिंपल है कि जिसके डेट है उसने पहले पे करने हैं। तो अगर सिचुएशन ये है कि दोनों के डेट है, फर्म के भी डेट है और पार्टनर के भी डेट है, तो फर्म की प्रॉपर्टी बेच के पहले फर्म के डेट पे किए जाएंगे। इसी तरीके से पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स बेच के पर्सनल डेट्स पैसे पहले पे किए जाएंगे। अब फर्म के डेट पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है, तो वो पार्टनर से बढ़ जाएगा।
इसी तरीके से पार्टनर के पर्सनल डेट पे करने के बाद अगर उसके पास कुछ पैसा बच जाता है तो वो यूटिलाइज करेगा फर्म के डेट्स को पे करने के लिए। फर्म्स डेट्स, प्राइवेट डेट्स, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि क्या ऑर्डर रहेगा। डेट्स ओन्ड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर, फर्म के डेट क्या है, जो फर्म ने दूसरों को, आउटसाइडर्स को जो है पैसा पे करना है। प्राइवेट डेट्स, डेट्स ओन्ड बाय अ पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल होम लोन फ्रॉम बैंक। प्राइवेट डेट्स ये हैं जो पार्टनर के पर्सनल डेट्स हैं, जो उसके प्राइवेट डेट्स हैं इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, हो सकता है होम लोन ले रखा हो बैंक से, हो सकता है उसने कार लोन के लिए पैसा लिया हो, पर्सनल लोन के लिए पैसा लिया हो, तो वो उसके प्राइवेट डेट कहलाएंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, अब फर्म की प्रॉपर्टी को हमने कैसे यूज करना है, फर्म की प्रॉपर्टी को पहले हमने यूज करना है फर्म के डेट पे करने में, और अगर कुछ पैसा बच जाता है तो प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर्स को पे करने के लिए यूज होगा। अब हम प्राइवेट डेट्स का ऑर्डर देख लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ पार्टनर प्रॉपर्टी, अब उसका अपना मकान हो सकता है, उसके अपने शेयर्स हो सकते हैं, उसकी जो भी पर्सनल एसेट्स हैं, उसकी कार हो सकती है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, उसकी जो पार्टनर के जो पर्सनल या प्राइवेट जो उसके एसेट्स हैं, उससे पहले वो अपने प्राइवेट डेट्स पे करेगा, और अगर उसके पैसा बच जाता है और अगर हमारे पास डेफिशिएंसी है कि फर्म के डेट पूरे नहीं हो सकते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा फर्म के डेट को पे करने के लिए। स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डज द लोन फ्रॉम एन आउटसाइडर हैव प्रायोरिटी ओवर द लोन फ्रॉम ए पार्टनर एज टू द रीपेमेंट? क्या जो आउटसाइडर से लोन लिया गया है वो उसकी प्रायोरिटी है लोन फ्रॉम ए पार्टनर से, मतलब दो लोन है एक फर्म के पास, एक जो है आउटसाइडर से लिया हुआ है और एक जो है पार्टनर से लिया हुआ है। ये पूछा गया सवाल में कि जो लोन आउटसाइडर से लिया हुआ है, क्या उसकी पार्टनर से जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर प्रायोरिटी है। तो अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है सेक्शन 48 और सेक्शन 49 में कि जो बाहर वाले के, जो आउटसाइडर जो है, उनके लोन्स जो है पहले पे किए जाते हैं और पार्टनर से जो लोन लिया गया हुआ है वो बाद में पे किया जाता है। सो प्रायोरिटी है पहले लोन फ्रॉम आउटसाइडर और सेकंड प्रायोरिटी है लोन फ्रॉम पार्टनर। सो इसका आंसर हम सिंपली लिख देंगे यस। Question number 2. Varun and Arun are partners in a firm sharing profits and losses equally. On the date of dissolution of the partnership firm, Varun's wife's loan was rupees 45,000, whereas Arun's loan was rupees 65,000. Which loan will be paid first and why? So एक फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर है, वरुण और अरुण, और वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं, और ये फर्म जो है वो डिसॉल्व भी हो गई है। अब वरुण की वाइफ का लोन है 45,000 रुपए। जो फर्स्ट पार्टनर है वरुण, उसकी वाइफ ने लोन दिया हुआ है 45,000 रुपए, और अरुण जो कि पार्टनर है, सेकंड पार्टनर, उसने लोन दिया हुआ है 65,000 रुपए। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा लोन जो है पहले पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता ही है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज पहले पे की जाती है और पार्टनर की ने जो भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है, पार्टनर का डेट जो है वो बाद में पे किया जाता है। तो ये हमने सेक्शन 48B में पढ़ चुके हैं। सो वरुण की वाइफ का जो लोन है वो एक आउटसाइडर लोन ही माना जाता है। कोई भी पार्टनर के रिलेटिव से अगर हम लोन ले लेते हैं तो वो आउटसाइडर लाइबिलिटी मानी जाती है, जबकि अगर हम पार्टनर से कोई भी लोन लेते हैं सो वो पार्टनर का लोन माना जाता है, वो उसकी जो है सेकंड प्रेफरेंस होती है। सो आइए इसका आंसर नोट कर लेते हैं। Mrs. Varun loan, which is a third party, will be paid for rupees 45,000 and Arun's loan will be paid for rupees 65,000 as per section 48B of the Indian Partnership Act 1932. सेक्शन 48B में क्लियरली लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी की लोन पहले पे होंगे और पार्टनर के रिलेटिव का जो लोन है वो थर्ड पार्टी ही होता है, और पार्टनर का जो लोन है वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी बनती है। क्वेश्चन नंबर 3. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Mrs. B has given a loan of rupees 40,000 to the firm and A has also given a loan of rupees 80,000 to the firm. The firm was dissolved and its assets realized 60,000 rupees. State the order of payment of Mrs. B's loan and A's loan assuming that there was no other third party liability of the firm. एक फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर है ए और बी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। मिसेस बी जो है उसने लोन दिया हुआ है 40,000 रुपए, तो ये पार्टनर का रिलेटिव का लोन हो गया, आउटसाइडर लोन हो गया। और ए जो पार्टनर है उसने भी एक लोन दिया हुआ है 80,000 रुपए। फर्म डिसॉल्व हो गई है और सारे एसेट्स बेच के हमारे पास सिर्फ 60,000 रुपए मिले हैं। 60,000 रुपए हमें मिले हैं जिसके बीच में
हमारे पास एक आउटसाइड लाइबिलिटी है 40,000 की और पार्टनर की लाइबिलिटी है 80,000 रुपये। हमें जो है बताना है कि कैसे जो है पेमेंट होगा, पेमेंट का ऑर्डर बताना है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले ही बात किया है कि आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज जो पहले पे की जाती है और पार्टनर का बाद में पे किया जाता है। अब 60,000 रुपये हमारे पास आए तो 60,000 रुपये में से हम 40,000 रुपये जो है पूरे के पूरे मिसेस बी को पहले पे कर देंगे। अब इसमें बाकी कितने बचे? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जो है वो ए को मिलेंगे। सो आइए इसका आंसर नोट कर लेते हैं। Mrs. B loan third party will be paid for rupees 40,000 and A's loan will be paid for rupees 20,000 as per section 48B of the Indian Partnership Act 1932. Question number 4. All the partners want to dissolve the firm. Why a partner demands that his loan of rupees 2 lakh to be paid before payment of capitals of the partners, but X another partner demands that capital be paid before payment of Y's loan. Who is correct? So students, एक फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर है X और Y, और वो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गई है। अब जो है जब फर्म डिसॉल्व हुई है, Y जो एक पार्टनर है उसने लोन दे रखा है फर्म को 2 लाख रुपए के लिए। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे एक जो है आर्गुमेंट हो रहा है जिसके बीच में वाई कह रहा है कि मैंने जो लोन दिया वो पहले पे किया जाए, जबकि एक्स जो है कह रहा है कि नहीं, मेरी जो कैपिटल है वो पहले पे की जाए। तो हमें बताना कि कौन करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगेन हम जो है रेफरेंस लेंगे सेक्शन 48B का, जिसके बीच में लिखा हुआ है कि पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर का जो कोई लोन है उसको पे करना है, और अगर कोई पैसा बचता है तो पार्टनर की कैपिटल, और उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे वाई ने एक लोन दे रखा है तो वाई के लोन की प्रायोरिटी हो जाएगी ओवर पेमेंट ऑफ कैपिटल या रिफंड ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो आइए आंसर नोट कर लेते हैं। Y is correct since as per section 48B of the Indian Partnership Act 1932, amount due to partner on account of loans and advances has a priority over amount due to a partner on account of capital. Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.